کیا ہو اگر کوئی بک آج سے 1400 سال پہلے کہے کہ چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی نہیں ہے، یعنی چاند خود سے روشنی پیدا نہیں کرتا جیسے سورج کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اکثر ہماری آنکھیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں، وہ ہمیں جو دکھاتی ہیں وہ ہمیشہ پوری حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے خوبصورت مثال آسمان کا نیلا رنگ ہے۔ ہم اس گہرے نیلے آسمان کو دیکھ کر اسے اس کی اصلیت مان لیتے ہیں، مگر سچائی یہ ہے کہ آسمان کا کوئی اپنا رنگ نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں صرف بنی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھ پاتی ہیں، بنانے کی کلا کو نہیں۔ وہ نتیجہ دیکھتی ہیں، بنانے کا طریقہ نہیں۔ وہ جادو دیکھتی ہیں مگر جادوگر کے ہاتھ کے پیچھے چھپی آرٹ کو نہیں دیکھ پاتی۔ اگر یہ خطرناک شعاعیں بالکل بنا رکے زمین تک پہنچ جائیں تو یہاں زندگی کا وجود ختم ہونے کا خطرہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سائنس اینڈ سائن کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شروع سے ہیں تو آپ گواہ ہیں ان عظیم نشانیوں کے جنہیں سائنس نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے، لیکن قرآن نے ان کی وضاحت 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے قرآن نے ہمارے اس یونیورس کی شروعات یعنی بگ بینگ کے پورے پروسیس کو بیان کیا، کیسے قرآن نے ایمبرولوجی کے ان اسٹیجز کو واضح کیا جنہیں آج صرف مائکروسکوپ اور الٹراساؤنڈ کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے جانا کہ کیسے یہ عظیم و شان پہاڑ ہماری اس دنیا کا بیلنس بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ کیسے واٹر سائیکل کا پورا نظام ہواؤں کے چلنے سے لے کر بادلوں کے بننے اور برسنے تک ایک ایک قدم کو قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دیکھا۔ قرآن کا ہر لفظ ایک ایسی علمی سچائی ثابت ہوا جو آج انسان کی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ پھر ہم نے سیکنڈ ایپیسوڈ میں اپنی نظر کائنات کی عظمت سے ہٹا کر چھوٹی مخلوقات پر جمائی، اور ہمیں احساس ہوا کہ شہد کی مکھی کی پوری سلطنت ایک فیمیل لیڈرشپ کے تحت چلتی ہے۔ چیٹیاں آپس میں واقعی گفتگو کرتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے قرآن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں بیان کیا۔ ہم نے دو سمندروں کو دیکھا جو آپس میں مل کر بھی اپنی خصوصیات نہیں کھوتے، اور کیسے ہمارے ہاتھوں کی لکیریں، ہمارے فنگر پرنٹس ہماری ایک ایسی یونیک آئی ڈی ہیں جس کا ذکر صدیوں پہلے کر دیا گیا تھا۔ ان سب نشانیوں نے ہمیں ایک بات سکھائی کہ اللہ ہی قادر مطلق ہے اور اس کا اختیار ہر چیز پر حاوی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد بھی وہی ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، یعنی غور و فکر کرنا۔ سورہ البقرہ آیت 164 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتے ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کی ڈائریکشن بدلنے میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ ان سب میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں بے شمار نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور اس بات پر فوکس کیا گیا ہے کہ ہم انہیں سمجھیں اور ان پر غور کریں۔ امیجن کیجئے کہ آپ ایک ایسی عظیم کتاب کے صرف پہلے پنے کو پڑھ رہے ہیں جبکہ اس کے اندر گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ ایک ایسی حقیقت کا آغاز دیکھ رہے ہیں جس کے پردے کے پیچھے پوری کائنات کے راز چھپے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت صرف آسمانوں کے رنگوں تک ہی محدود نہیں ہے، وہ تو صرف شروعات ہے۔ اصل سبق تو وہ ہے جو ان رنگوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، وہ قدرتی قانون جو اس پورے نظام کو چلاتے ہیں، اور وہ حفاظتی ڈھال جو ہمیں پل پل بچاتی ہے۔ مگر اکثر ہماری آنکھیں صرف بنی ہوئی چیزوں کو ہی دیکھ پاتی ہیں، بنانے کی کلا کو نہیں۔ وہ نتیجہ دیکھتی ہیں، بنانے کا طریقہ نہیں۔ وہ جادو دیکھتی ہیں مگر جادوگر کے ہاتھ کے پیچھے چھپی آرٹ کو نہیں دیکھ پاتی۔ اسی خوبصورت پہلو کو سمجھنے کے لیے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم پردے کے پیچھے کی ایسی دنیا کا سفر کریں گے۔ ہم انہی چھپے ہوئے دھاگوں کو جوڑیں گے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے، اور سب سے گہری بات یہ کہ ان میں سے ہر ایک راز کا ذکر 1400 سال پہلے ایک ایسی کتاب میں کر دیا گیا تھا جسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جس نے نہ صرف نتیجہ دکھایا بلکہ اس کے پیچھے چھپی پوری کہانی بھی سنا دی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے قرآن کا ایک لفظ ہواؤں کے ان چھپے ہوئے کام کو بیان کرتا ہے جو پودوں کو فرٹیلائز یا امپریگنیٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے اللہ نے آسمان کو ایک محفوظ چھت کہا، اور آج کی سائنس اس کے ہر لفظ کی گواہی دے رہی ہے، اور کیسے سورہ یونس کی ایک آیت چاند کی روشنی کی وہ حقیقت کھول دیتی ہے جو آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے۔ تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کے زندہ معجزے ہیں، یہ اس حکیم مطلق کی نشانیاں ہیں جس کی ہر تخلیق میں ایک گہری حکمت چھپی ہے۔
तो चलिए और शुरू करते हैं सूरह हिज्र आयत 22 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हम ही हैं जिन्होंने हवाओं को फर्टिलाइजिंग या इम्प्रेग्नेटर बनाकर भेजा, फिर हमने आसमान से पानी उतारा और तुम्हें उससे सैराब किया, जबकि तुम तो उस पानी को स्टोर करने वाले नहीं हो। इस आयत में इस्तेमाल हुआ लफ्ज लवाकी अरबिक लफ्ज लाकी की जमा है, जो इम्प्रेग्नेटर या फर्टिलाइजर से निकला है। सीधा सा मतलब है बाराबर करने वाली या इम्प्रेग्नेटिंग करने वाली हवाएं। सदियों तक मुफस्सिरीन इसका मतलब समझते थे कि हवाएं बादलों को बाराबर करती हैं, जिसके बाद बारिश होती है। ये मायने भी सही हैं, लेकिन आज की साइंस ने इस लफ्ज के एक और गहरे मायने से पर्दा उठाया। बोटेनी यानी पौधों की साइंस हमें बताती है कि 90% से ज्यादा फूलदार पौधों को अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए पॉलिनेशन की जरूरत होती है। इस प्रोसेस में नर फूल के पोलन मादा फूल तक पहुंचाना होता है, और इस अमल को अंजाम देने वाले सबसे बड़े एजेंट में से एक हवा है। हवाएं नर पौधों से लाखों करोड़ों पोलन ग्रेन्स उड़ाती हैं और उन्हें मीलों तक बिखेर देती हैं, और जब ये पोलन ग्रेन्स उसी नस्ल के मादा फूल पर गिरते हैं तो फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में फल और बीज बनते हैं। मतलब हवा ने पौधों को बाराबर कर दिया। कुरान का 1400 साल पहले लफ्ज लवाकी का इस्तेमाल करना, जो सीधे सीधे फर्टिलाइजिंग विंड्स का मतलब देता है, एक मौजज़ा है। ये एक ऐसी बायोलॉजिकल रियलिटी है जिसे इंसान ने हाल ही में डिटेल से समझा है। इस एक लफ्ज में अल्लाह ने पौधों की जिंदगी के सबसे अहम राज को बयान कर दिया है, जिस पर हमारी ग़िज़ा और इस प्लानेट का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। चलिए अब एक और निशानी की तरफ चलते हैं। ये सच है कि अक्सर हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं। वो हमें जो दिखाती हैं वो हमेशा पूरी हकीकत नहीं होती। इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल आसमान का नीला रंग है। हम इस गहरे नीले आसमान को देखकर इसे इसकी असलियत मान लेते हैं, मगर सच्चाई ये है कि आसमान का कोई अपना रंग नहीं है। ये सिर्फ सूरज की रोशनी का हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस और धूल के छोटे छोटे जर्रों का टकराकर बिखरने का नतीजा है। सूरज की रोशनी में से नीला रंग सबसे ज्यादा बिखरता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ छोटी होती है, और यही बिखरा हुआ नीला रंग हमें आसमान को नीला दिखाता है। तो ये दिलकश नीला रंग, जो असल में सूरज की रोशनी का एक करिश्मा है, दरअसल एक खूबसूरत पर्दा है। एक ऐसा पर्दा जो इस आसमान की असल हकीकत को हमारी निगाहों से छुपा लेता है। साइंस के मुताबिक हमारे एटमॉस्फेयर के बाद स्पेस शुरू हो जाती है, जो हम जानते हैं कि एक बहुत फैला हुआ और गहरा है, जिसमें सितारे, सैयारे और गैलेक्सीज हैं। अगर हमारी जमीन के गिर्द एटमॉस्फेयर ना होता तो दिन में भी आसमान काला ही दिखाई देता, जैसे चांद से दिखता है। लेकिन कुरान 1400 साल पहले इस नीले आसमान के पर्दे को हटाता है और हमें बताता है कि यह आसमान महज एक रंग का डोम या गुंबद नहीं है, बल्कि एक अजीमो शान हिफाजती ढाल है, एक हिफाजती छत है। सूरह अंबिया आयत 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने आसमान को एक प्रोटेक्टेड सीलिंग बना दिया है, एक हिफाजती छत बना दिया है, मगर वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं। यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सक़फ़म महफूजा, यानी एक प्रोटेक्टेड सीलिंग या हिफाजती छत। ये तस्बीह बहुत गहरी और साइंटिफिकली बिल्कुल एक्यूरेट है। इसका अंदाजा हमें आज हुआ है। हमारा आसमान, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, कई लेयर्स से बना है, और हर लेयर एक खास हिफाजती ढाल है, यानी प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करती है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पहला, खतरनाक शुआओं से हिफाजत, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेज। सूरज से आने वाली रोशनी में खतरनाक शुआएं यानी रेज भी शामिल होती हैं। इन्हीं में से एक है इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसे हम गर्मी के एहसास के तौर पर महसूस करते हैं। ये सबसे लंबी वेवलेंथ वाली रेज है जो सूरज से आती है, और इसका लगभग 50 से 55% हिस्सा ही हम तक पहुंचता है। इसके बाद आती है विजिबल लाइट, यानी वो रोशनी जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और रंगों को पहचान पाते हैं। इसका हिस्सा आमतौर पर 40 से 45% ही हम तक आता है। आखिरी किस्म है अल्ट्रावायलेट यूवी रेज की, जो इनमें सबसे छोटी वेवलेंथ वाली है। यही वो रेज है जो स्किन को जलाकर सनबर्न की वजह बनती है। इन यूवी रेज का हिस्सा लगभग 3 से 5% ही आता है। अगर ये खतरनाक शुआएं बिल्कुल बिना रुके जमीन तक पहुंच जाएं, तो यहाँ जिंदगी का वजूद खत्म होने का खतरा है। मगर अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए आसमान ने एक हिफाजती लेयर बना रखी है, जिसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ये लेयर 95%
से 97% तक यूवी रेस को जज्ब कर लेती है और हमें स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाती है। दूसरा, आसमानी पत्थरों से हिफाजत, प्रोटेक्शन फ्रॉम मेटेरॉइड्स। रोजाना लाखों की तादाद में छोटे बड़े आसमानी पत्थर यानी मेटेरॉइड्स 1.5 लाख किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं। अगर ये सब जमीन से टकरा जाएं तो यहाँ तबाही मचा दें, लेकिन हमारी महफूज छत इनमें से 99% को जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा की रगड़ से जलाकर राख कर देती है। रात के वक्त जिन्हें हम टूटता तारा या शूटिंग स्टार समझते हैं, वो दरअसल यही जलते हुए आसमानी पत्थर होते हैं जो इस हिफाजती ढाल की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाते। ये एक क्लियर निशानी है कि किस तरह हमारी हिफाजत का गैबी इंतजाम किया गया है। इसके लिए हमने कोई मशीनें थोड़ी बना ली हैं कि वो उन पत्थरों को हटाती हैं। ये एक ऐसी छत बना दी अल्लाह ने हमारे लिए जो हमें इन मुसीबतों से बचाती है। तीसरा, सर्दी और गर्मी से हिफाजत, प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। स्पेस का टेम्परेचर इंतहाई सर्द होता है, ठंडा होता है, यानी -270 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर जमीन के गिर्द एटमॉस्फेयर की ये छत ना होती तो जमीन पल भर में जमकर एक बर्फीला पत्थर बन जाती। इसके बरक्स दिन के वक्त सूरज की तपिश इतनी ज्यादा होती है कि वो भी जिंदगी को जलाकर राख कर सकती है। यहाँ एटमॉस्फेयर एक दोहरा किरदार अदा करता है। दिन के वक्त ये सूरज की शदीद गर्मी और हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर करके जमीन तक पहुंचने देता है, और रात के वक्त ये एक कंबल की तरह काम करता है, एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। जमीन दिन में जो गर्मी जज्ब करती है, एटमॉस्फेयर उस गर्मी को पूरी तरह स्पेस में वापस खारिज नहीं होने देता। इसी अमल को साइंस की जुबान में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये कुदरती निजाम जमीन पर रात और दिन के टेम्परेचर में एक बैलेंस बनाए रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पानी अपनी लिक्विड हालत में मौजूद है और जिंदगी के लिए मुनासिब माहौल बना रहता है। तो ये सिर्फ एक छत नहीं है, बल्कि एक ऐसी ढाल है जो हमें ना दिखने वाले अनगिनत खतरों से हर लम्हा बचा रही है। ये साइंस की ऐसी खोज है जो पिछली कुछ सदियों में हुई है, लेकिन कुरान ने इसकी तरफ 1400 साल पहले ही इशारा कर दिया था। ये इस बात का क्लियर सबूत है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, जिसने इस कायनात को बनाया और वही इसके राजों को भी जानता है। तो चलिए अब एक ऐसी निशानी की तरफ चलते हैं जो सारी दुनिया के लिए एक जिंदा सबूत है। क्या हो अगर कोई बुक आज से 1400 साल पहले कहे कि चांद की रोशनी उसकी अपनी रोशनी नहीं है, यानी चांद खुद से रोशनी पैदा नहीं करता जैसे सूरज करता है, लेकिन ये एक ऐसी हकीकत है जिसे आज साइंस ने साबित कर दिया है। आइए इस खूबसूरत चांद की रोशनी के सफर को कुरान की नजर से समझते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरज और चांद का जिक्र अलग अलग अंदाज में किया है, जो उनकी रोशनी की फितरत को बहुत अच्छे से बयान करता है। वही है जिसने सूरज को रोशन बनाया और चांद को नूर से मुनव्वर किया। इस आयत में सूरज के लिए लफ्ज जिया इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है रोशनी का एक जखीरा, एक चिराग या लैंप। ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि सूरज अपनी रोशनी पैदा करता है, जबकि चांद के लिए लफ्ज नूर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है रोशनी या चमक। बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स जो कुरान की तफसीर लिखते हैं, इस लफ्जी फर्क को इस बात की दलील मानते हैं कि कुरान वाज़े तौर पर यह बता रहा है कि चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं है, बल्कि वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। कुरान की जरा दूसरी आयत पर गौर कीजिए, जहां इससे भी क्लियर इशारा मिलता है। सूरा नूह आयत 15 से 16 में, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए और उनमें चांद को एक नूर बनाया और सूरज को एक चिराग बनाया। यहाँ भी सूरज को सिराज यानी चिराग कहा गया है, जो खुद रोशन होता है और गर्मी देता है, जबकि चांद को नूर कहा गया है, जो एक ठंडी और मध्यम रोशनी है, जैसे कि किसी चिराग से रोशनी लेकर चमकने वाली चीज। ओके, मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हम रोजाना की जिंदगी में देख सकते हैं, जैसे हमारे ये रोड्स, हमारी इन सड़कों पर पड़ी ये सफेद और पीली पट्टियां। ये पट्टियां दिन में तो आम सी दिखती हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब उन पर गाड़ी की हेडलाइट्स पड़ती है तो वो चमक उठती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें छोटे छोटे शीशे के दाने या खास किस्म के प्रिज्म्स मिलाए जाते हैं। ये दाने अपने अंदर से रोशनी पैदा नहीं करते, बल्कि गाड़ी की रोशनी को वापस ड्राइवर की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसे रेट्रो रिफ्लेक्शन कहते हैं, और इससे अंधेरे में भी रास्ता
साफ नजर आता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान ने 1400 साल पहले चांद को नूर कहकर ये इशारा दिया कि उसकी अपनी जाती रोशनी नहीं है, वो सिराज यानी सूरज की रोशनी से मुनव्वर होता है और उसी रोशनी को हमारी जमीन की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सड़क की पट्टियां गाड़ी की रोशनी के बिना अंधेरे में गुम हो जाती हैं, वैसे ही अगर सूरज ना हो तो चांद भी दिखना बंद हो जाएगा। इसी तरह सूरह फुरकान आयत 61 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उसमें चिराग और एक रोशन चांद बनाया। यहाँ चांद के लिए लफ्ज मुनीर का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है रोशन होने वाला या चमकने वाला। ये इस बात की तरफ तस्दीक करता है कि चांद खुद रोशनी का जरिया नहीं है, बल्कि वो किसी और चीज से रोशनी हासिल करके चमकता है। कुछ लोग यहाँ ये कह सकते हैं कि नूर का मतलब सिर्फ रोशनी है, ना कि रिफ्लेक्ट की हुई रोशनी। ये बात भी दुरुस्त है कि नूर एक आम लफ्ज है जो किसी भी रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब कुरान सूरज और चांद के लिए अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल करता है, एक को जिया और सिराज यानी रोशनी का जखीरा और दूसरे को सिर्फ नूर कहता है, तो इससे उनके दरमियान एक क्लियर फर्क का इशारा मिलता है। इस तरह कुरान का खूबसूरत बयान ना सिर्फ चांद की रोशनी की हकीकत को वाज़े करता है, बल्कि इंसान को इस कायनात में अल्लाह की निशानियों पर गौर व फिक्र करने की दावत भी देता है। ये इस बात का सबूत है कि कुरान एक ऐसी किताब है जो हर दौर के इंसान के लिए हिदायत का जरिया है। मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर कुरान पढ़ते होंगे, तो उसको समझकर भी पढ़िए और गौर कीजिए। तो दोस्तों, हमने हवाओं के उस पोशीदा किरदार को देखा जो जिंदगी को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है। हमने अपने सर के ऊपर कई इनविजिबल लेयर्स वाली इस अजीम हिफाजती छत को समझा। बोटेनी, एटमॉस्फेरिक साइंस, एस्ट्रोफिजिक्स, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब अलग अलग नॉलेज हैं, लेकिन इन सब की निशानियां एक ही किताब में मौजूद हैं। यहाँ रुककर एक लम्हे के लिए जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक शख्स इन तमाम हकीकतों को खुद से ही जान ले? एक ऐसी जात जिसके पास ना कोई ऑब्जर्वेटरी थी, ना माइक्रोस्कोप और ना ही मॉडर्न लेबोरेटरीज। इसका सिर्फ एक ही लॉजिकल और ऑनेस्ट जवाब है, हरगिज नहीं। ये उस जात का भेजा हुआ इल्म है जिसने इन हवाओं को बारावर करने का हुक्म दिया, जिसने इस आसमान को हमारे लिए ढाल बनाया और जिसने हमारे जिस्म के हर रेशे रेशे को बनाया। ये निशानियां हमें दावत देती हैं कि हम सिर्फ कैसे पे ना रुकें, बल्कि इस कैसे के जरिए कौन तक का सफर करें कि इन सब के पीछे कौन है। ये सफर इल्म से ईमान तक का सफर है। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को और अच्छे से समझने की तौफीक अता फरमाए, और अगर इसमें मुझसे कुछ गलती हुई है तो ये मेरी कमी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दीन तमाम गलतियों से पाक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।